Assalamu alaikum and good evening, all of you. This will be my first video on my YouTube channel, and the first topic is introduction to statistics. Since this is my first video on my YouTube channel, please subscribe and like. Thank you. So let's start with the introduction of statics. First of all, we need to understand what the statics is. The word statics, it has been derived from three words, or we can see it has been derived from the Latin, it has been derived from the Italian, and it has been derived from the German. In Latin, it is known as status. In Italian, it's known as statista, and in German, it's known as statistic. Status, statista, and statics. Each of the scope, it has a primary link with the political state. Which means political state. The word statics, it has a deep relation with the government. Like it means the collection of the data. When you talk about a deep relation with the government, here it means a collection of data. Like you might have heard government क्या करती है, वो collective data करती है regarding the age, regarding the gender, regarding the literacy rate. वही होता है collection of data, और इसी में हमें आ जाता है statics होता क्या है. Now in today's world, statics has an indispensable part of every human activity. It is regarding as one of the important tools of, it's regarding as one of the important tools for making decisions. And those decisions in an uncertainty situation. Uncertainty situation. This was a simple introduction what statics is all about. अब जो statics हमारे पास होता है, it has two senses. The first one is singular, and दूसरा is, and then another one is plural. When I talk about the singular sense में, it refers to the principles and methods of collecting data. या अब हम देखेंगे इसमें collecting data के बाद होता क्या है. I will briefly introduce you about that. और plural जब मैं बोलता हूँ, it means of a numerical statement. Numerical statement. अब singular sense हम पहले कवर देखेंगे. We will cover first what is singular statement में हमारे पास क्या होता है. सिंगुलर स्टेटमेंट पे हमारे पास सब जो पहले ही हमारे पास चीज होता है, या हमारे पास जो पहला स्टेप होता है, वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. या कलेक्शन ऑफ डाटा भी हम बोलते हैं उसको. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लाइक दिस. सपोज मैं आपको जी एक असाइनमेंट देता हूं कि आप जी अपने एरिया में
कंफर्म कीजिए या आप जी अपने एरिया में चले जाइए और वहां पर देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो क्या पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट चले जाएंगे, आप सब भी चले जाएंगे, तो आप देखोगे कि अपने नेबर से बात करोगे, अपने कजन से बात करोगे, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लिक से बात करोगे, देखोगे कि कितने स्टूडेंट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। सो वी हैव एरिया ए वहां पर 5 पढ़ रहे, एरिया बी वी हैव 6, एरिया सी में 7 एंड एरिया ई में, एरिया डी में वी हैव 3 स्टूडेंट्स। ये रैंडम नंबर है हमारे पास है। तो ये जो आप गए अपने एरिया में, अपने कॉलोनी में, ये जो आपने जहां पर 5 6 7 3 मुझे दिया, दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने डेटा कलेक्ट किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द स्टैटिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर ये डेटा आपने सही से इन्वेस्टिगेट या आपने सही से ये डेटा कवर किया, तो मेरा जो कंक्लूजन है वो सही आ जाएगा। अदरवाइज जो मेरा कंक्लूजन है वो एक रॉन्ग कंक्लूजन आ जाएगा। सो फिलहाल तो आपने एक डेटा कलेक्ट कर दिया। डेटा कलेक्शन के बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है? वंस द डेटा इज कलेक्टेड, इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली। इट नीड्स टू बी organized properly. Properly matlab data can be organized by editing, by classifying, or by tabulation, or by tabulating. इसमें हम लिखेंगे अभी by tabulating। क्या किसी जगह omissions होंगे या inconsistency होगी, हमें वो करेक्ट करने हैं। दिस इज द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। लाइक हमारे पास 5 6 7 3 है, हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे like 5 6 7 3 and we have n number of data। हम उसको उस शेप में लाएंगे जिस शेप में हम इजीली उसको क्लासिफाई कर सके। उसमें अगर कोई गलती होगी वो हम इजीली उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास स्टेप होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज टू प्रेजेंट डेटा in an orderly manner। orderly manner इसीलिए so that or so as to facilitate statistical analysis, so that as to facilitate the statistical analysis। like हम यहाँ पर tables बनाते, graphs हम बनाएंगे, या डायग्राम जो हमारे पास होती है हम वो बनाएंगे उसी हिसाब से। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस जब भी आफ्टर स्टैटिस्टिकल डेटा जब हम कलेक्ट करते, ऑर्गेनाइज करते, कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड presented, then they are ready for further statistical analysis so as to draw a meaningful conclusion। यहाँ पर एनालिसिस ऑफ डेटा में हमारा क्या होता है, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन बन जाता है। एक मीनिंगफुल कंक्लूजन्स हम यहाँ पर बनाते हैं। लाइक वी यूज द वेरियस टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्निक्स हम क्या करते हैं, हम एक मीनिंगफुल कंक्लूजन बनाते हैं। और वो टेक्निक्स क्या होती है हमारे पास, जो आपको इंशाल्लाह आगे पढ़ना है, वो हमारे पास होती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा हम बोलेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, and third we will write skewness या ratio, percentage, correlation, regression, etc. These are the techniques जो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक मीनिंगफुल कंक्लूजन प्रेजेंट करना होता है, बनाना होता है. And the last one is interpretation of data. Fifth, I guess. Interpretation of data. Interpretation of data में मतलब क्या होता है? This is the last stage of statistical investigation. बहुत बार सवाल भी आता है, which one is the last stage of the statistical investigation? That is the interpretation of the data. I will write the last stage here. In order to draw the meaningful conclusions from the statistical data, it should be properly interpreted to that right decisions can be taken. जो हमने लास्ट स्टेप में देखा कि हमारे पास एनालिसिस ऑफ डेटा होता है और हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या टेंडेंसी या स्क्यूनेस या बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं. उन्हीं टेक्निक्स पर जब हम एनालाइज करते हैं डेटा या मीनिंगफुल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं. और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम एक राइट डिसीजन ले. राइट डिसीजन एंड अनसर्टेनिटी वो हमें देखना होता है यहाँ पर. सो ये सब कुछ डिपेंड है कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए पर. अगर आपने डेटा सही से कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है, तभी आप एक इंटरप्रिटेशन, तभी आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो. अदरवाइज डिसीजन लेना बहुत इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो रॉन्ग है, वो गलत है, वो हमने फॉल्टी एक डेटा बनाया है. सो ये था हमारा पहला सिंगुलर सेंस में. अब दूसरा हमारे पास जो है वो है जी प्लूरल सेंस. आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक जो भी मैंने आपको अभी तक बोला. प्लूरल सेंस में अगर हम बताएंगे, इट हैज वेरियस डेफिनेशंस. वी हैव अ डेफिनेशन बाय द फेमस डॉक्टर A.L. Fowler, who says कि statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. This is the definition given by the A.L. Fowler. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हम फैक्ट्स देखते हैं और उन फैक्ट्स पर ही हम क्या करते हैं, एक डिसीजन बनाते हैं या एक कंक्लूजन निकालते हैं कि व्हाट फर्दर वी हैव टू डू. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैटिक्स इन द सिंगुलर सेंस एंड इन द प्लूरल सेंस. अब we will start with the techniques, क्योंकि आपके सिलेबस में भी हमारे पास जो टेक्निक्स है वो देखनी है हमारे पास टेक्निक्स के. बट टेक्निक्स स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि डेटा जो हमारे पास एक स्टैट में होता है वो किस टाइप का डेटा होता है. कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे वो इस डेटा पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का होता है. हमारे पास जो डेटा होता है यहाँ पर वो दो टाइप का होता है जी. एक होता है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप्ड. और ग्रुप्ड का ही हमारे पास है दूसरा नाम बोलते हैं डिस्क्रीट. एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप डेटा, और जिसको हमारा दूसरा नाम है डिस्क्रीट. अनग्रुप्ड डेटा होता है क्या है?
अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नहीं होगी, या हमारे पास फ्रीक्वेंसी के बदले अगर आपको याद समझ नहीं आ रहा है, अक्रंसेस, नंबर ऑफ अक्रंसेस मेरे नहीं होंगे। सिंपली यहाँ पर हमारे पास एक रफ डेटा होते हैं, एक रॉ डेटा होते हैं, 5 10 6 10 11, वही हमारे पास एक डेटा होता है। लाइक वी विल हैव लाइक दिस डेटा 5 2 1 3 4 9, हमारे पास ये डेटा होता है, और इस डेटा को हम एज एन एक्स डिनोट करते हैं। इट दिस एक्स कुड बी एनीथिंग, दिस एक्स कुड बी मार्क्स ऑब्टेन्ड, वेजेस, और कुछ भी हमारे पास ये एक्स हो सकता है। और साइज ऑफ द आइटम ये भी हो सकता है, हमारा बहुत सारा ऐसे साइज ऑफ द आइटम हो सकता है। सो अनग्रुप्ड में ये हमें याद रखना है कि ये वो वाला डेटा होता है जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। वाइल एज इन द ग्रुप्ड एंड डिस्क्रीट और डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, उस वो मतलब होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ अकरेंसेस होते ही होते हैं। Like I will make you understand with this example. Let's suppose we have weights and we have number of workers. Weights हमारे पास है 100 200 300 400 500, और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास है 2 3 5 10 12। यहाँ पर वेज हमारे एक्स हो बनेगा और नंबर ऑफ वर्कर्स एफ बनेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी अक्रंसेस कितनी बार। हमारे पास जो 100 वेज है वो 2 एम्प्लॉयज वर्कर्स को जा रहा है, 203 वर्कर्स को जा रहा है, 305 वर्कर्स को जा रहा है, 410 वर्कर्स को जा रहा है, और 512 वर्कर्स को जा रहा है। सो इन शॉर्ट, ग्रुप्ड डिस्क्रीट वो सीरीज होती है जहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी होगा एंड वी हैव द एक्स, हमारे पास एक्स भी होगा और हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स भी होंगे। गुड। अब डिस्क्रीट में हमारे पास एक और सीरीज होती है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास दो होते, एक होते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज EXCLUSIVE, और दूसरा तो इंक्लूसिव सीरीज। देखिए जी, मैं यहाँ पर पहले आपको कुछ समझाना था। मान लो कि आपकी क्लास में वी हैव 50 स्टूडेंट्स और आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आज। तो आपकी जो कंसर्न टीचर होते हैं वो आपको एक रूम में नहीं बिठाते, क्योंकि वहां पर उतनी स्पेस नहीं होती, वहां पर स्पेस है खाली 20 स्टूडेंट्स की। तो वो क्या करते हैं काम, वो तो आपको सभी को तो बिठा नहीं पाएंगे, वो बोलते हैं 0 से 20 जो भी स्टूडेंट पहले स्टूडेंट है वो रूम 1 में चले जाइए, 20 से लेकर 40 तक रूम 2 में चले जाए, और 40 से लेकर 60 तक रूम 3 में चले जाइए। सिंस हमारी 60 नहीं है 50 है, यानी कि लास्ट में 10 ही बैठेंगे। सो उसने क्या किया काम, उसने क्लास इंटरवल्स बना दिए, 0 to 20 20 40 40 60 क्लास इंटरवल जब हम बनाते हैं वही क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस सीरीज में आ जाता है। लाइक वी हैव क्लास इंटरवल्स हियर, और क्लास इंटरवल्स में दो चीज होती है हमारे पास, वी हैव लोअर लिमिट and we have upper limit. Lower limit we do not with as L1 और upper limit we do not with as L2. वही होता है यहाँ पर continuous series में. Like we will have X and we will have F. या हम X को यहाँ पर लिखेंगे marks obtained and यहाँ से लिखेंगे number of students. So let's say we will say 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on भी हम नहीं लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम लिखेंगे 3
I will change the color ताकि आपको समझ आ जाए. I will write the 3, 4, 5 and 6. यानी कि मार्क्स ऑब्टेन 0 से 10 तक मुझे मार्क्स ऑब्टेन की है. कितने स्टूडेंट्स ने? 3 स्टूडेंट ने. 10 से 20 तक 4 स्टूडेंट ने. 20 से 30 तक 5 स्टूडेंट ने. और 30 से 40 तक 6 स्टूडेंट्स ने. और यही होता है क्लास इंटरवल्स. ये दीज आर द क्लास इंटरवल्स. और हर एक का क्या होता, हर एक का मेरे पास एक क्लास लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट होगा. पहले वाले में मेरा 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 10 है. दूसरे में 10 मेरा लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 20 है. वैसे ही 20 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट एंड सो ऑन. अब याद इसमें ये रखना है, एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें ये चीज याद रखनी होती है कि द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल जो मैं सर्कल से कर रहा हूँ, दैट शुड बी द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल. आप देखोगे 10 10 20 20 30 30. अगर मुझे 40 के बाद कोई और स्टार्ट करनी होगी, दैट विल स्टार्ट विद द 40 to 50. अब बताओगे सर आपने क्यों 40 50, आपने 40 60 क्यों नहीं दिखा या 40 70 क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमारे पास ये चीज याद रखना होता है, हमें क्लास इंटरवल्स की जो डिफरेंस होती है वो सेम रखनी होती है. यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 10 है, यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी 10 है, और नेक्स्ट भी 10 ही होनी चाहिए. और उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर, और जो हम सी से डिनोट करते हैं. मैं फिर से एक बार बताता हूँ, एक डिफरेंस होती है हमारे पास क्लास इंटरवल्स की और वो सेम होनी चाहिए. लाइक 0 to 10 10 है, 10 to 20 ये वाले. जहाँ ये जो मैं आपको येलो कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंसेस. ये हमारे पास सेम होनी चाहिए. और यही होती है एक्सक्लूसिव सीरीज. इनक्लूसिव भी ऐसे ही है, बट उसमें थोड़ी बहुत हमें देखना, वो हम देखेंगे वो क्या होता है. एक्सक्लूसिव में भी हम लिखेंगे x एंड f, वही मार्क्स ऑब्टेन 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो आप देखोगे खुद ही. यहां पर हम लिखेंगे 0 to 9. बट यहां पर याद रखने, द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल शुड नॉट बी द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. इट शुड नॉट बी द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. यानी कि दूसरी क्लास में 10 से स्टार्ट हो, 19 20 29, नेक्स्ट 30 to 39, शाबाश, एंड सो ऑन. 1 2 3 4 5. और इसकी भी अगर मैं डिफरेंस देखूंगी, इट विल बी सेम 10 10 10 एंड 10. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हमारे पास जो डेटा है वो अनग्रुप्ड होता है, दूसरा होता है ग्रुप्ड और डिस्क्रीट. और डिस्क्रीट में हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज होती है. और जो हमें सवाल करने, जो क्वेश्चन हमें करने, वो हमें इन ही डेटा, इन ही सीरीज पर करना होता है. इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया कि ये किस टाइप का डेटा होता है. तो इंशाल्लाह आज हम इतना ही देखेंगे. कल वी विल स्टार्ट विद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें हम देखेंगे हमें पढ़ना क्या है. तो सिंस आप लोगों को मालूम है कि ये मेरा पहला वीडियो है, आई होप यू ऑल विल सब्सक्राइब, like and share with other students also. Thank you.